Hello and good morning dear students. Today we are once again start our chapter 2. Chapter 2, and what is the chapter name is Function and Manipulation in Excel. And today's topic is the following picture shows the main components of MS Excel 2007 विंडो। मीन्स जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर में MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे खोलते हैं, बट आज के वीडियो में ये देखेंगे जब हम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब हम उस विंडो को अपने डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो क्या होता है। एक विंडो खुलता है, वही वो टॉपिक है, कौन सा, ये वाला। द फॉलोइंग पिक्चर शोज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल 2007 विंडो। इसी के बारे में आज हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो देन वी मूव टू आवर विंडो। हियर व्हेन यू स्टार्ट among all the 4 steps follow, that's after that your desktop look like this window. This is the MS Excel window. Okay, this is the MS Excel window, and here when you got this window many much more elements or components coming with him. मतलब कि जब ये विंडो खुलेगा तो इसके साथ वेरियस टाइप्स के कंपोनेंट भी इसके साथ आएंगे जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे ऊपर जो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या होता है, सबसे ऊपर जो बुक 1 और किस चीज़ का विंडो है, किस प्रोग्राम का विंडो है, इसके बारे में हमें ये बताता है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये विंडो है और ये बुक 1 खुला है। और बुक 1 में जानते ही है कितने पेज हो सकते हैं, ठीक है, कितने कंटेंट हो सकते हैं। तो ये बुक 1 खुला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका बुक 1 ही सबसे पहले खुलता है। आप चाहें तो अपने एक्सेल के बुक 1 का नाम भी चेंज कर सकते हैं जब आप सेव करेंगे तब। ओके, now this is the control area, this is the controlling area. Here minimize button, maximize button, cancel button also, and this is the ribbon, this is the name box, and this cell is cell, and this and one highlighted cell also called the cell pointer exists there. Okay, and also you can see that this is the active cell, this is the active cell, and these are all the sheets or worksheet. This is called the worksheet. जो पूरे इंटायर जो कॉलम और रोज का कम्बिनेशन होता है हम उन्हें वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपको ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, और रोज देखिए ये जो आपका हॉरिजेंटल लाइंस है, ये जितने भी लाइंस है ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं, रोज। क्या बोलते हैं, रोज। यानी कि वर्टिकल लाइन हमारा क्या हुआ, कॉलम हुआ, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या हुआ, रोज हुआ। इज दैट क्लियर। Here 2 types of scroll bar. Here 2 types of scroll bar. First is vertical scroll bar and second is horizontal scroll bar. Second is horizontal scroll bar. Now here we have to why use this scroll bar. When our page hide the side of left, right, up or down, that's we can use the scroll bar in our window, any window. Okay, because scroll bar is the common bar that exists in any window. That's
This is the help for page move or sheet move or document move up, down, left or right. Okay, so here दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार. जो आपका खड़ा हुआ है वो जब अप डाउन करेंगे तो आप उसको टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी कि आप ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं पेज को. किसके माध्यम से? इस वर्टिकल स्क्रॉल बार के हेल्प से. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार. क्लियर है? नाउ हियर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. हियर दिस इज द horizontal scroll bar. This is the horizontal scroll bar, and this is the help for if you want to turn the page left side or right side or left side. Okay, those content height, this is the help for this scroll bar. So it is called the horizontal scroll bar. This is the called is horizontal scroll bar. Is that clear? And here navigation button. Here navigation button. And what is the help of navigation button? Navigation button helps to move around our window in sheet, left, right, top or bottom. Is that clear? Here these are by default. When you open your Excel window, that you can check your window will be appear along with the 3 sheet 1, sheet 2, sheet 3. By default 3 sheets available there. And if you want to mention or insert many types of many sheet, that you can create. But by default in our computer system, when you start our MS Excel window, that's time 3 sheets open together. Okay, that you can also rename it sheet 1 if you want to write student detail, sheet 2 if you want to write teacher detail, sheet 3 if you want to marks detail, periodic test detail, that you can rename. Then, and how can you rename? When you right click on this tab, that's one option is appear, that's like rename. And when you click the rename option, that's highlighted the sheet 1, sheet 2, sheet 3. And after that you can, with the help of keyboard, you can type the name, particular name those you have want, and after that left in, and after that you can check the name will be sheet 1 disappear and rename type there. Okay, so here this is the by default sheet 1, sheet 2, sheet 3, and you can say that this is the sheet tabs. You can say that sheet tabs. क्लियर है? यहाँ पर आपको दिख रहा है 100% के बाद 100% के बाद एक आपका क्या दिया है? माइनस और एक प्लस और मिडिल. इससे आप क्या कर सकते हैं? अपने सीट को जूम इन जूम आउट, मतलब 100 प्लस करेंगे तो आपका जूम होगा और 100 से माइनस करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो कंटेंट है वो स्मॉल होता जाएगा. ठीक है, प्लस करेंगे इंक्रीज होगा और माइनस करेंगे तो डिक्रीज होगा. बट हमें देखना है 100% के नीचे और 100% से ऊपर. 100% के जब ऊपर होगा तभी वो जूम होगा. इसलिए हम पेज को यदि एक्चुअली देखना है तो हम क्या देखते हैं? 100% पे देखते हैं. क्लियर है? आफ्टर दैट हियर दिस इज द नेम बॉक्स. दिस इज द name box. And why here name box can? If you select any cell, that's like if you select E, here we have to select this cell, that's their name is change. A1 is change like E3. Here write the E3 in name box. What happened? E3, because active cell in the name box mention. जो आपका एक्टिव सेल रहेगा, जिस भी सेल में आप काम कर रहे होते हैं वो सेल आपका क्या होता है? खुल जाता है. और
वो नेम बॉक्स में भी शो करता है और वो हमेशा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो देखिए कि सबसे पहला हमारा जो A1 सेल है, A1 जो सेल है, ये पहला वाला सेल हाईलाइटेड उसकी बाउंड्री लाइन है, यानी कि हमारा जो एक्टिव सेल है और जो सेल पॉइंटर हमारा A1 में है, यानी कि हम जब काम करेंगे कीपैड से, कीबोर्ड से, तो हमारा जो टाइपिंग का जो इंसर्शन पॉइंट होगा हमारा A1 में होगा। और हमेशा हम जब भी नेम राइट करते हैं सेल का, तो हमारा कॉलम और रो के अकॉर्डिंग ही नेम मेंशन होता है। जैसे कि A1, तो A मतलब एक कॉलम हुआ और 1 मतलब रो हुआ, यानी कि जो कॉलम्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं, ABCDEF, ABCDEF, दिस इज द अल्फ़ाबेट्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, ठीक है। एंड रोज क्या होता है, काउंटिंग नंबर से होता है। रोज क्या है, काउंटिंग नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारा जो सेल एड्रेस डिफाइन होता है कॉलम और रोज के इंसर्शन से होता है, कॉम्बिनेशन से होता है। इसलिए A1 तो पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो A क्या हुआ, कॉलम हुआ, और 1 क्या हुआ, रो हुआ, यानी A1 हमारा क्या हुआ, सेल एड्रेस हुआ। तो नेम बॉक्स में क्या होता है, उस सेल का आइडेंटिटी, मतलब उस सेल का आइडेंटिटी क्या है, A1 है, तो वहां पर वो ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा कंप्यूटर में। ओके, अब देखते हैं यहां पर FX करके दिया हुआ है, FX करके दिया हुआ है। तो FX क्या होता है, फॉर्मूले के लिए होता है। किस लिए होता है, फॉर्मूला के लिए होता है, फॉर्मूला बार होता है। क्या होता है, फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में आप फार्मूला टाइप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्री डिफाइन ऐसे फार्मूलेज हैं जो हम एक्सेल विंडो में कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। फार्मूला बार में आप, इसीलिए तो हम एक्सेल सीट का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइन फंक्शन हैं जो हम एक साथ अपने डाटा पे पूरे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है। आई थिंक एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन हियर अबाउट दिस एक्सेल विंडो। ओके, many elements that you see in the Excel 2007 window are standard in other Microsoft software programs like Word and PowerPoint। जैसा कि जब हम देखते हैं कि वर्ड और पावर पॉइंट को खोलते हैं तो बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा और एडवांस एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्सेल के विंडो में देखने को ही हमें मिलते हैं। जैसे कि क्या, सम एलिमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू एक्सेल आर, जो एक्सेल में ही दिखते हैं। क्या क्या है, वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम्स, सेल, सेल पॉइंटर, एक्टिव सेल, सीट टैब, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, नेविगेशन बटन, जो कि अभी हमने आपको आपके विंडो के हेल्प से उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन किया हुआ है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसके और अच्छे से डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। सो आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा, सम एलिमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू एक्सेल आर। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, जो इतने कंटेंट दिए हुए हैं ये एक्चुअली में होते क्या हैं। जैसा कि मैंने विंडो में तो बहुत कुछ बता दिया है, आपको क्लियर भी हो गया होगा, बट मैं इसका एक और एक्चुअल वीडियो बनाऊंगा जिसका वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, ETC ये क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट टुडेज वीडियोज, दैट्स यू कैन ask me with my personal calling number. Okay, thank you, have a nice day.